One, I welcome you in biology class. In this we will discuss structure of DNA. इससे पहले हमने बात करी थी कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, फ्रेडरिक मीशर ने कैसे इसको खोजा, क्या इसका नाम दिया, न्यूक्लियन नाम दिया। फिर उसके बाद में वाटसन एंड क्रिक, रोजालिन, फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस, ऐसे और भी साइंटिस्ट आए जिसमें एक और नाम जोड़ना चाहूंगा, चार्गाफ, जिन्होंने मिलकर काम किया और अल्टीमेटली डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाया। इसको वाटसन एंड क्रिक ने फिर आगे प्रपोज किया और जिसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो आपके सामने है। तो इस स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं ध्यान से तो हमें ऐसा लगता है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, but these are not thread basically. These are long chain of polypeptides, polynucleotides. Then what is nucleotide? Nucleotide is comprised of three parts. One is sugar, second is nitrogenous base, and third one is phosphate. So these three makes one nucleotide. So many nucleotides are joined together to form this long polynucleotide chain, and such two chains are there which are bound helically or in a coiled fashion with one another and have opposite polarity. We say they are complementary to one another. One is having this 5 prime, look at this, and then second end of this is 3 prime, and this one is 3 prime, and this one is 5 prime. And dear student, when we discuss the structure of DNA, we say sometimes students get confused from where this 5 came and from where this 3 came. Actually, this depends upon the position of the carbon in ribose sugar. So this is ring structure of ribose sugar having 5 carbon, carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, and carbon number 5. So when we are starting the chemical structure of DNA, it is there. When we draw this sugar, this 5 carbon comes first. So it is marked as 5. So this one is 5. This one is 5. So this sugar and one nitrogenous base. So nitrogenous bases are 4 that we have already studied. Adenine, in case of DNA, adenine, thymine, guanine and cytosine. Adenine and guanine are purines, and thymine, cytosine in case of DNA are pyrimidine. So there is always bonding between A and T, G and C. This is complementary bonding. So when I am talking about ribose sugar, this is 5' carbon. So like this, when we go down sugar, and then one phosphate, then sugar, then phosphate, then sugar. The last sugar that will come at the end of this strand, it will have 1, 2, 3. 3 end here. So 3 and is represent. This is 5 and this one is 3. Alright. And on opposite thread, which is said to be complementary, the position of the sugar is just inverted. Inverted means carbon number 1 is here, carbon number 2 is here, carbon number 3. So 3 is up. So new thread is starting from this 3. That's why it is marked as 3. It is marked as 3. So when this nucleotide is repeated many times, when many nucleotides is joined together, at the end, let us assume this is the last sugar here. So in this 1, 2, 3, 4 and 5. The 5 and or 5 carbon comes here, which is marked as 5. Which is marked as 5 here. So सबसे बड़ी confusion बच्चों को यही होती है कि ये 3 कहाँ से आया और ये 5 कहाँ से आया, ये 3 और 5 कैसे लिखे जाते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझने की यही होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब हम देखें, जो A और T है उसके बीच में डबल बॉन्ड है, और जो G और C है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये एक जो जोड़ा होता है, दिस इज वन पेयर, इसको हम ना बोलते हैं वन बेस पेयर, बीपी टर्म इसके लिए यूज करते हैं। और ये सेकंड बेस पेयर है,
और इस तरह से बच्चे पूरा डीएनए जब हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग का, उसमें 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है एक न्यूक्लियस के अंदर, एक सेल के अंदर भी। तो ये बेस पेयर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। देखें, सो दिस इज वन बेस पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से बहुत सारे, मतलब 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। तो जब बच्चे हम बात करते हैं इसमें कि कहीं पर डबल बॉन्ड है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल लाइक दिस, देन अ फोर्स और टेंशन इज क्रिएटेड ऑन दीज two strands. As a result of these two strands they get twisted and coiled due to unequal strength of sigma and pi bonds, as we can interpret in terms of chemistry. All right, and then this structure gets twisted and there is formation of a helical structure. And in this, dear student, one helix of DNA, हेलिक्स और जिसको हम पिच भी बोलते हैं, वन हेलिक्स ऑफ डीएनए इज कंप्राइज्ड ऑफ 10 बेस पेयर। यहां पर देखेंगे ये जो यहां से यहां तक ये कर्व है, इसको हम एक हेलिक्स बोलते हैं, और जिसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर होते हैं। दिस इज वन हेलिक्स, और इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, इट इज 34 एंगस्ट्रॉम। राइट, अगर 10 के बीच में 34 एंगस्ट्रॉम का लेंथ है, ठीक है, तो 2 के बीच में कितना होगा, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, डिवाइडेड बाय 10, राइट, 3.14 एंगस्ट्रॉम। तो 10 पेयर का एक हेलिक्स होता है, और 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम आता है। और हमारे पास टोटल बेस पेयर कितने हैं, 6.6। ओके, अगर हम 6.6 बेस पेयर टोटल है डीएनए में, और 2 के बीच में डिस्टेंस 3.4 है, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसको अगर हम नैनोमीटर में चेंज कर दें तो 0.34 नैनोमीटर आएगा, या 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इन 2 के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको टोटल जो बेस पेयर हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻⁹, 10⁻⁻⁹ से कैंसिल होकर हमारे पास में अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग मीटर जो है लेंथ निकलती है। तो मतलब इतना लंबा डीएनए जो है हमारी सेल में होता है। तो अब देखिए बच्चे, आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो बैकबोन जो है डीएनए की शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट की बनती है, और हर एक शुगर पर पोजीशन नंबर 1 पर हमेशा नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है जुड़ते हैं। ये नियम है कि नाइट्रोजनस बेस पेयर हमेशा पोजीशन नंबर 1 पे जुड़ेगा। और जो फॉस्फेट है यहाँ पर, जिसकी हम बात करें PO4 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगाना हम भूल गए, PO4 नेगेटिव जो है इसमें जो है पोजीशन नंबर या तो 3 में जुड़ सकता है जैसे यहाँ पर, या पोजीशन नंबर 5 में भी जुड़ सकता है। तो जो फॉस्फेट शुगर 2 शुगर के बीच में आता है, ठीक है, और इससे ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, इसलिए हम इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। और फॉस्फेट की वजह से क्या हो जाता है बच्चे, नेगेटिव, पूरा डीएनए के ऊपर जो है एक तरह से नेगेटिव 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 चार्जेस जो है आ जाता है फॉस्फेट की वजह से। इसलिए डीएनए जो है बहुत अनस्टेबल हो जाता है, और इसलिए उसको किसी ऐसी पॉजिटिव एंटाइटी के साथ में एसोसिएट होना पड़ता है जो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, और जो इसको एक स्टेबल स्ट्रक्चर प्रदान करे, और वो पॉजिटिव एंटाइटी, जो पॉजिटिव बॉडी होगी, वो है यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए।